بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شوہر ساس کی دوسری شادی کروا رہی تھی۔ میں نے شور ڈالا تو ساس اور شوہر نے مل کر مجھے چھت والے کمرے میں بند کر دیا جہاں جنات کا سایہ تھا۔ میں نے ساس کو سبق سکھانے کے لیے جنات کو بلانا چاہا۔ جیسے ہی سورہ جن کی تلاوت شروع کی تو دیکھ بیٹا، میری بات سن، امی نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ میں نے آج شام ہی وہاں جانا ہے۔ انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن خیال رکھنا کہ تیری بیوی کو کانوں کان پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ خاموشی سے تیری شادی بھی ہو جائے اور چپکے سے تیری بیوی کی جائیداد بھی تیرے ہاتھ لگ جائے، اور یہی درست وقت ہے کوئی فیصلہ لینے کا۔ نسیم بھائی ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے ہم نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ سب کچھ ہماری مٹھی میں آ جائے اور نسیم بھائی بھی ہاتھ ملتے رہ جائے۔ میرے شوہر نے جواب دیا، لیکن امی، آپ کو کس طرح یقین ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے مطابق ہو بھی جائے گا؟ امی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، ضرور ہوگا بیٹا، ضرور ہوگا۔ خاندانی دشمنی کی جب آگ بھڑکتی ہے تو اس کے شعلے دور تک دکھائی دیتے ہیں۔ میرے شوہر نے اپنی زندگی کا صرف ایک فیصلہ خود کیا کہ گھر والوں کی مخالف مول لے کر مجھ سے پسند کی شادی کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ جب تک تمہارا باپ زندہ رہا تمہارے دادا نے ہمیں 1 روپیہ نہیں دیا، اور قسم خدا کا اتنی بڑی جائیداد میں سے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی میرے شوہر کے نام نہیں کیا۔ تمہارے والد تو اسی غم کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، لیکن تمہارے چچا نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ باپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد وہی ہمارا حق دے دیتا، لیکن نہیں، اس نے بھی تمہارے باپ کو صاف جواب دے دیا کہ ساری جائیداد ابو جی نے اس کے نام کی ہے۔ میرے شوہر بولے، امی، آپ کو ضرورت ہی کیا پڑی تھی کہ چچا کی بیٹی کے ساتھ میری شادی کر دی؟ میں تو ویسے بھی زوبیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات آپ بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ میری ساس نے کہا، میرے بچے، یہی تو ہم دونوں میں فرق ہے۔ میں تمہاری ماں ہوں اور تم ابھی بچے ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ میں بدلہ لیے بغیر یہ سب کچھ اسی طرح جانے دوں گی؟ ہرگز نہیں۔ میں نے بھی نسیم بھائی کے دل پر کار ضرب نہیں لگایا تو میرا نام بھی شہناز بیگم نہیں ہے۔ میں شاپنگ کرنے کے لیے قریبی مارکیٹ گئی ہوئی تھی۔ گھر پہنچی تو دروازہ کھلا تھا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ دروازہ کیوں کھلا رکھا ہوا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آنے لگی تو ساس کے کمرے سے آتی آوازیں سن کر میں رک گئی۔ میری ساس کہہ رہی تھی، میری کوشش ہوگی کہ اگلے جمعہ نکاح کی تاریخ مل جائے۔ اگر وہ نکاح کی تاریخ دے دیتے ہیں تو میں اگلے جمعہ ہی تمہارا نکاح پڑھا دوں گی۔ یہ سنتے ہی میں پریشان ہو گئی کہ میری ساس کس سے باتیں کر رہی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو دروازہ کھل گیا، اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اندر تو میرے شوہر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے تائی امی؟ آپ کس کی شادی کی باتیں کر رہی تھی؟ میری ساس اور شوہر دونوں خاموش کھڑے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ میں دوبارہ بولی، تائی امی، مجھے بتائیں، آپ کس کی شادی کی باتیں کر رہی تھی؟ آپ بہزاد کی شادی کرانا چاہتی ہیں، لیکن بہزاد میرا شوہر ہے۔ کیا آپ کو اس بات کا علم ہے یا آپ کو بتانا پڑے گا؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ بہزاد، تم بتاؤ مجھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، تو آپ لوگ نہیں بتائیں گے؟ ٹھیک ہے، اب میرے پاپا ہی آپ لوگوں سے پوچھیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے پرس میں سے موبائل نکالا تو بہزاد نے میرا موبائل میرے ہاتھ سے چھین لیا اور مجھے کھینچتا ہوا سیڑھیوں سے اوپر چھت والے کمرے میں لے گیا اور بولا، تمہیں اب یہ بتانے کا وقت آ گیا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ میری ساس خاموشی سے میرے ساتھ چلتی آ رہی تھی۔ میں چلائی، کیا تم میرا قصور مجھے بتاؤ گے؟ کیا کیا ہے میں نے؟ بہزاد بولا، بہت جلد تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ میری ساس نے چھت والے کمرے کا دروازہ کھولا تو بہزاد نے مجھے کمرے کے اندر دھکا دے دیا۔ میں نے کہا، بہزاد، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ دیکھو، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میری ساس نے مجھے دونوں بازو سے پکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے بولی، زوبیہ، وقت بہت بے رحم ہوتا ہے۔ وقت کبھی کسی کا نہیں ہوتا، سب کو موقع دیتا ہے۔ آج میرا وقت ہے،
और मैं ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। ये कहकर मेरी सास ने मुझे बेड पर धक्का दिया और वो दोनों कमरे से बाहर चले गए। मेरे शौहर ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मैं भागती हुई दरवाजे के पास आई और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। बहजाद, दरवाजा खोलो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे बताओ तो सही, माजरा क्या है? तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? देखो, मेरे साथ ऐसा मत करो। बहजाद, मैं कह रही हूँ, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं काफी देर दरवाजा पीटती रही, लेकिन मेरे शौहर ने दरवाजा ना खोला। मेरा शौहर और सास दोनों नीचे जा चुके थे। मैं रो रही थी। मैं काफी देर वही दरवाजे के पास जमीन पर बैठी रोती रही। मेरा नाम सूबिया है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ। मेरे वालिद एक कारोबारी शख्स हैं। शहर में उनकी अपने बिजनेस की वजह से एक पहचान है। मेरी सास रिश्ते में मेरी ताई भी लगती है। जब तक दादा जिंदा रहे वो ताया से खफा खफा रहती थी। मामा बताती हैं कि दादा ताया की शादी खानदान में ही करना चाहते थे, लेकिन ताया ने ताई के साथ छुपकर पसंद की शादी कर ली थी। ताई ने भी ताया के लिए अपना घर बार छोड़ा और उनके साथ आ गई। ताया मोहब्बत करने वाले शख्स थे। उन्होंने तो ताई के साथ पूरी वफा की, लेकिन दादा ने ताई को कभी तस्लीम ही नहीं किया और उसका ये नतीजा निकला। चूंकि दादा खानदान में सबसे बड़े थे, तो दादा की तकलीद करते हुए कोई भी ताया के साथ अच्छे मरासिम न रख पाया। उसका गिला ताया ने कई मौकों पर किया था कि पूरे खानदान ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। दादा के दुनिया से गुजर जाने के बाद मेरे पापा ने दोबारा ताया के साथ अपने मरासिम को बेहतर किया। आखिर दोनों सगे भाई ही तो थे, कब तक एक दूसरे के साथ नाराज रहते। ताई ने आए दिन हमारे घर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। फिर एक दिन ताई ने बहसात के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। मामा इस शादी के लिए हरगिज तैयार नहीं थी, लेकिन पापा ने ये रिश्ता कबूल कर लिया ताकि भाई के साथ उनके ताल्लुकात दोबारा से मजबूत हो जाए। बहसात के साथ मेरी शादी को 1 साल ही हुआ था। शादी का 1 साल तो बहुत अच्छा गुजरा। मुझे तो कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ताई ने अपने दिल में कौन सा जहर भर रखा है। न बहसात ने कोई ऐसी बात की थी कि मुझे उन पर शक होता, और आज अचानक बहसात और ताई ने मिलकर अपनी असलियत मुझ पर जाहिर कर दी। न जाने ये लोग अब क्या करने वाले थे। मेरे पास तो फोन भी नहीं था कि मैं किसी से राब्ता कर सकती। पापा भी मामा को लेकर इंग्लैंड चले गए थे। इंग्लैंड में पापा को बिजनेस के हवाले से काम था और वहां से पापा और मामा ने वापसी पर सऊदी अरब जाना था उम्रा के लिए। उम्रा की वजह से मामा भी पापा के साथ गई हुई थी। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं उस कमरे में बंद थी। यहाँ मैं क्या कर सकती थी? अचानक एक छिपकली मेरी गोद में आ गिरी। मैं चीखें मारती उठ खड़ी हुई। मुझे छिपकली से बहुत डर लगता था। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मैं उछलकर बेड पर जा बैठी। मैंने गौर किया तो छिपकली जख्मी थी। हाय अल्लाह, ये तो जख्मी है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो उसे देखकर ही कुछ हो रहा था। थोड़ी देर मैं उसे देखती रही। बेड के साथ साइड टेबल पर जग में पानी पड़ा हुआ था। मैंने पानी गिलास में डाला और थोड़ा सा पानी छिपकली के आगे डाल दिया, लेकिन छिपकली बहुत ही मामूली सी हरकत कर रही थी। शायद उसे बहुत जोर से चोट लगी थी। काफी देर इसी तरह गुजर गई। आखिर मैंने हिम्मत करके छिपकली को पाँव से बुलाया। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जमीन पर चंद मकोड़े मरे पड़े थे। मैंने वो उठाकर छिपकली के आगे फेंक दिए। चंद लम्हों बाद ही छिपकली ने उन्हें खा लिया। मैंने थोड़ा सा और पानी उसके आगे डाला। कुछ देर बाद वो हरकत करने लगी और दरवाजे के नीचे से बाहर चली गई। मैंने शुक्र पढ़ा कि शुक्र है चली गई। उसी असना में दरवाजा खुला। मेरी सास अंदर आई और बोली, ज़ुबिया, 2 दिन बाद बहजाद का निकाह है। अगर तुम फर्मा बरदार बहू की तरह बहजाद की दूसरी बीवी को कबूल कर लोगी तो सुखी रहोगी, वरना जिंदगी तुम्हारे लिए जहन्नुम बन जाएगी। मैं हैरत से सास को देखने लगी, जो रिश्ते में मेरी ताई भी लगती थी। मैंने कहा, ताई अम्मी, आपको हुआ क्या है? ऐसा क्या हुआ है कि अचानक मैं आपके लिए इस कदर नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त बन गई? मेरी ताई बोली, ज़ुबिया, जानती हो,
मासी ने मेरे दिल पर कितने गहरे जख्म लगाए हैं, नहीं जानती। ये समझ लो कि अब इन जख्मों को भरने का वक्त आ गया है। मैं चिल्लाई, तो क्या आप मेरा दिल छलनी करके अपने जख्म भरेंगी? हर दौर में किसी न किसी को तो कुर्बानी देना पड़ती है। जूबिया कोई परवाह नहीं करता कि कुर्बान होने वाला कितने दर्द झेल रहा है। सब अपनी दुनिया में मगन किसी एक को कुर्बानी का बकरा बनाकर उसके मुर्दा जिस्म पर अपनी पता की तख्ती लगा देते हैं। मैंने कहा, मैं अक्सर सोचती थी कि दादा ने आपके साथ ज्यादती की है। दादा को आपको भी खुले दिल से कबूल करना चाहिए था। लेकिन अब सोच रही हूँ कि कोई तो वजह रही होगी जिसकी बिना पर दादा जान ने आपको मरते दम तक कबूल नहीं किया। ये सुनते ही ताई मेरे करीब आई और खींचकर मुझे थप्पड़ रसीद किया और बोली, तुम ये भी तो सोच सकती थी कि अगर तुम्हारे दादा और तुम्हारा खानदान मुझे कबूल कर लेता तो शायद मैं आज ऐसी ना होती। लेकिन नहीं, तुम्हारी रगों में भी सिकंदर शाह का खून दौड़ रहा है। तुम उनसे कैसे मुख्तलिफ हो सकती हो? ये कहकर ताई वापस जाने लगी। तो मैंने कहा, जब पापा वापस आ जाएंगे फिर आप क्या करेंगी? ताई ने मुझे मुड़कर देखे बगैर जवाब दिया, ये मेरा मसला है, तुम इसके बारे में मत सोचो। ये कहकर ताई वापस चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। आधी रात का वक्त था। मैं कमरे की खिड़की से पूरे चांद को देख रही थी। अब मुझे अच्छी तरह समझ आ गई थी कि जो कुछ मासी में ताई के साथ हो चुका है, ताई उसका बदला लेना चाहती है और अपना बदला लेने के लिए वो मुझे चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। शायद मैं किसी हद तक ठीक भी हूँ कि दादा ने किसी वजह से ताई को कबूल नहीं किया होगा। लेकिन अगर तस्वीर का दूसरा रूप देखा जाए तो क्या मालूम, दादा ने अगर खुले दिल से ताई को कबूल किया होता तो शायद वो ऐसी ना होती। ताया यही दुख लिए दुनिया से चले गए। लेकिन एक बात तो तय है कि जुल्म के बदले में जुल्म और नाइंसाफी के बदले में नाइंसाफी करके कभी भी मुआशरे में सुधार नहीं लाया जा सकता। मेरी जिंदगी बर्बाद करके ताई को कौन सा सुख मिल जाता? यकीनन जो जिंदगी खुद गुजारी, जो जहर उन्होंने अपने अंदर जमा किया, वही जहर वो बहसात के अंदर उंडेलती रही। इसलिए वो भी कितनी दुलेरी के साथ अपनी माँ के हर सही गलत फैसले के साथ खड़ा है। बहसात की आंखों पर इंतकाम की जो पट्टी उसकी माँ ने बांधी है, वो पट्टी उतारना बहुत जरूरी है। और ताई ने अपने इर्द गिर्द इंतकाम के जो शोले भड़काए हुए हैं, उन्हें बुझाना भी बहुत जरूरी है, ताकि ताई को अपने इर्द गिर्द सब कुछ साफ नजर आ सके। बहसात और ताई को सबक सिखाना पड़ेगा, लेकिन ये होगा कैसे? या अल्लाह मेरी मदद कर, अल्लाह पाक गैब से मेरी मदद कर, मेरे लिए अपने किसी नेक बंदे को वसीला बना। कहीं ऐसा ना हो कि इंतकाम की आग में जलते हुए ताई और बहसात अपना कोई ऐसा नुकसान कर बैठे जिसकी तलाफी ना हो सके। मैं उठी, मैंने वज़ू किया और तहज्जुद की नमाज अदा की और अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगी। नमाज से फारिग हुई तो वापस खिड़की के पास आकर बैठ गई। अचानक कमरे में एक आवाज गूंजी, ज़ूबिया, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैंने मुड़कर आवाज की सिमत देखा। मेरी चीख निकल गई। मैंने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। मैं आंखें फाड़े उसे देख रही थी। मैंने कहा, कौन हो तुम और तुम अंदर कैसे आए हो? वो बोला, डरो नहीं, आज तुमने मेरी मदद की थी। मैंने कहा, मैंने कब तुम्हारी मदद की थी? बातें मत बनाओ और निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचाऊंगी। वो बोला, मैं जिन ज़ादा हूँ। मैं छिपकली की शक्ल में यहाँ आया था, जख्मी था। तुमने मुझ पर तरस खाया। तुम मुझे मार भी सकती थी, लेकिन तुमने मुझे पानी पिलाया। चंद मरे हुए कीड़े मकोड़े मेरे आगे रखे ताकि मैं उन्हें खा सकूं। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं चंद कदम पीछे हटते हुए बोली, ये तुम क्या कहानियां सुना रहे हो? मुझे बताओ कि तुम अंदर कैसे आए हो? उसी वक्त उस नॉर्मल नजर आने वाले शख्स का कद लंबा होता चला गया और उसका सर छत से जा लगा। वो बोला, चाहूं तो तुम्हारी छत को तोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। उसने अपना एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो उसके हाथ में निहायत खूबसूरत फूलों का एक गुलदस्ता था। उसने वो गुलदस्ता मेरे सामने नीचे रख दिया और बोला, मेरा मकसद तुम्हें डराना या नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि मैं एक जिन हूँ और तुम्हारे एहसान के बदले में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरी तरफ से ये फूल तुम्हारे लिए हैं।
اگر میری ضرورت محسوس کرو تو سورہ جن کی تلاوت کرنا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ جن دوبارہ سے نارمل ہونا شروع ہو گیا اور پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ مجھ پر تو جیسے سکتہ طاری تھا۔ آخر یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی میں جنات ہوتے ہیں؟ میں نے تو صرف بچپن کی کہانیوں میں جنات کی کہانیاں پڑھی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد میرے حواس نارمل ہوئے۔ میں نے پھولوں کا گلدستہ اٹھا لیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بہت خوبصورت اور فریش پھول تھے۔ خوشبو اتنی زیادہ تھی کہ ان پھولوں کی خوشبو سے میرا پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ مجھے اس کمرے میں بند 2 دن گزر گئے۔ ان 2 دنوں میں میری ساس میرے لیے صرف 2 بار کھانا لے کر آئی۔ شام کا وقت تھا۔ مجھے نیچے سے کچھ آوازیں آنے لگی۔ لگتا تھا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ میری ساس نے کہا تھا کہ ٹھیک 2 دن بعد بہزاد کا نکاح کرانے والی ہے۔ میرے پاس انتظار کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میری ساس ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے اندر آئیں اور مٹھائی میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، منہ میٹھا کر لو، بہزاد کا نکاح ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، تائی یہ سب کر کے آپ کو کیا مل گیا ہے؟ تائی نے کہا، زوبیا، زندگی اسی کا نام ہے، کبھی تمہاری مرضی کبھی میری مرضی۔ تائی نے مٹھائی کا ڈبہ ٹیبل پر رکھا اور واپس چلی گئی۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ تائی کیا ہمیشہ سے اتنی ہی بے حس تھی یا اب ہو چکی تھی، لیکن اس بار تائی نے کمرے کا دروازہ بند نہیں کیا۔ مگر میں اب نیچے جا کر کیا کرتی؟ میرے لیے سب اجنبی ہو چکے تھے۔ بہزاد نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ زندگی کا خوشگوار 1 سال جو ہم نے ساتھ گزارا تھا، اس نے کسی ایک لمحے کا لحاظ بھی نہ کیا۔ ایک لمحے کو ایسا لگا کہ جیسے میری دنیا ختم ہو گئی ہے۔ میں بے سدھ اپنے بستر پر پڑی تھی۔ عشاء کی نماز پڑھی تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ یقیناً ماما اور پاپا نے بھی فون کیا ہوگا۔ نہ جانے تائی اور بہزاد نے انہیں کیا کہانی سنائی ہوگی۔ قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہوئی تو نہ جانے دل میں کیا آیا۔ میں نے ٹوٹے دل کے ساتھ سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی سورہ جن کی تلاوت ختم کی، وہی جنزادہ حاضر ہو گیا اور بولا، رونے سے کیا حاصل ہوگا؟ میں نے کہا، شاید دل کو سکون مل جائے۔ وہ بولا، سکون تو نہیں ملے گا، ہاں دل پر غم کی جو گرد جمی ہے وہ دھل جائے گی۔ میں نے کہا، کچھ غم عمر بھر کا سوگ بن جاتے ہیں۔ وہ بولا، کسی اپنے کے مرنے پر اللہ نے 3 دن کا سوگ منانے کی اجازت دی ہے، اس کے بعد کا تو سوگ بھی پسندیدہ نہیں ہے، جبکہ تمہارا تو شوہر ابھی زندہ ہے، تمہارا تو یہ سوگ بنانا بھی نہیں بنتا۔ میں نے کہا، تو پھر تم بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ بولا، اللہ نے ہر پریشانی کا حل پریشانی کے ساتھ بھیجا ہوتا ہے، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا کہ تم میری مدد کرو گے؟ یہ کہتے ہوئے میری ہچکیاں بن گئیں۔ وہ بولا، ہاں کروں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ میں نے کہا، وہ کیا؟ وہ بولا، تم نے بالکل سکون میں رہنا ہے، کسی کو محسوس نہیں ہونے دینا کہ تمہیں کوئی فرق پڑتا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن میں خود کو کیسے نارمل رکھوں گی؟ جنزادہ بولا، تم نے بس یہی کرنا ہے، باقی سب میں نے کرنا ہے۔ میں نے چند لمحے سوچا اور بولی، ٹھیک ہے، میں پوری کوشش کروں گی۔ جنزادہ مسکرایا اور غائب ہو گیا۔ ویسے تو مجھے پہلے ہی یقین آ گیا تھا کہ وہ جن ہے، لیکن وہ بار بار حاضر اور غائب ہو کر مجھے ڈرا کیوں رہا تھا؟ شاید اب مجھے بھی اس کے اس طرح آنے جانے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ اسی لمحے کمرے میں آواز گونجی، بالکل ڈال لینی چاہیے۔ میں نے ڈر کے مارے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور بولی، اللہ، یہ جن تو بڑا تیز ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کے سننے کی حس بھی بہت تیز ہے۔ میں نے قرآن پاک رکھا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ دل کا بوجھ کافی ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ تکیے پر سر رکھا ہی تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی، نیچے سے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے بھی اپنا دل مضبوط کیا اور نیچے چلی آئی۔ میری ساس، شوہر اور سوتن ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ لڑکی پر میں نے ایک بھرپور نظر ڈالی۔ دیکھنے سے ہی بہت چلاک نظر آ رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا واقعی میں چلاک ہے یا مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میری تائی بولی، آجو زوبیا، یہ کنول ہے، تم ہی ناراض ہو ورنہ کنول کو تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
वो तो तुम्हारे साथ एक ही छत के नीचे हंसी खुशी रहने के लिए तैयार है। अब तुम भी अपनी नाराजगी खत्म कर दो। मैंने कहा, मुझे भी कोई एतराज नहीं, लेकिन सिर्फ इतना तनबिया करूंगी कि मुझसे फ्री होने की कोशिश ना करे, वरना अच्छा नहीं होगा। ये कहकर मैं अपने कमरे में गई। मैंने अपने शौहर का सारा सामान उठाया और डाइनिंग रूम में लाकर सोफे पर रख दिया और बोली, मेरा कमरा अब से सिर्फ मेरा है बहसात, इसलिए तुम अपना बंदोबस्त किसी और कमरे में कर लो, और मैं आखिरी बार कह रही हूँ कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ये कहकर मैं अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी ही थी कि ताई ने कहा, जूबिया, ये क्या बदतमीजी है? मेरा बेटा इस घर का मालिक है, तुम्हारा शौहर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि उसे उसके कमरे से बेदखल करो? मैंने जवाब दिया, ताई अम्मी, शायद आप भूल रही हैं, तो मैं आपको याद करा देती हूँ कि ये घर मेरे नाम है और बाहर जो गाड़ी खड़ी है ना, वो भी मेरे ही नाम है। ये सुनकर मेरे शौहर कहकहा लगाकर हंस पड़े। मैं हैरान और परेशान उन्हें देख रही थी। कुछ देर बाद उनकी हंसी रुकी तो वो बोले, एक मिनट, यही रुको जूबिया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं साथ ताई के कमरे में गया। चंद लम्हों बाद वापस आया तो उसके हाथ में 2 फाइल थी। उसने एक फाइल खोलकर दिखाई और बोला, ये देखो, तसल्ली से पढ़ लो। पढ़ी लिखी तो हो ना, तो ये घर मेरे नाम ही है। वो तो हमने इस घर के जाली कागजात बनवाए थे, चच्चा को ये साबित करने के लिए कि हमें हर हाल में तुम्हारा रिश्ता चाहिए। ये तो एक ट्रिक थी चच्चा को शीशे में उतारने की, और देखो चच्चा इस ट्रिक में फंस गए। उसी लम्हे बहसात ने मुझे बाजू से पकड़ा और मुझे झंझोड़ते हुए बोला, जूबिया, दादा की सारी जायदाद हड़पने के बाद मैं हैरान हूँ कि चच्चा ये छत भी मुझसे छीन लेना चाहते थे। हाँ, वो ये भी तो कह सकते थे कि बहसात, इस घर की जरूरत नहीं है, मैं इसी तरह तुम्हें जूबिया का रिश्ता देता हूँ। लेकिन नहीं, जिसके पास जितनी दौलत हो उसका लालच और बढ़ता जाता है। फिर बहसात ने मुझे एक झटके से छोड़ दिया और हंसते हुए बोला, जी अम्मी, वो क्या कहते हैं, ये दिल मांगे मोड़। और हाँ, ये दूसरी फाइल दिखाऊं? ये वो गाड़ी है जो बाहर खड़ी है। ये भी देखो, ये भी असली पेपर है। ये गाड़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही नाम है। मैं खामोशी से अपने कमरे में चली आई। बहसात ने वहीं से चिल्लाते हुए कहा, जूबिया, अब करो फोन चच्चा जान को और बताओ उन्हें कि यहाँ तुम पर कितना जुल्म हो रहा है। मैं तुम्हारे लालची बाप से डरता नहीं हूँ। तुम्हारे बाप ने कभी मेरे बाप का साथ नहीं दिया। यही तुम्हारा बाप है जो हमेशा अपने बाप के साथ खड़ा रहा, मेरे बाप को जलील करने के लिए। तुम्हारे इस महज़िब खानदान ने मेरी माँ को कभी तस्लीम नहीं किया। मेरी माँ सारी जिंदगी इज्जत भरी एक नजर के लिए तुम लोगों की तरफ देखती रही। इतने में कंवल बहसात के करीब आई और बहसात का हाथ पकड़कर बोली, बस करें, आहिस्ता बोलें। बहसात ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मेरा हाथ, क्यों बस करूं? हाँ, मैं बोलूंगा। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे खानदान पर जहाँ खानदान रिश्तों का मजाक उड़ाने को अपना फर्ज अव्वलीन समझता है। सारी जिंदगी मेरा बाप मेहनत करता रहा और ये सब लोग दादा की जायदाद पर अय्याशी करते रहे। ये कहकर बहसात ने सोफे से अपनी जैकेट उठाई और घर से बाहर निकल गया। मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी बह रही थी। मुझे तो ये इल्म ही नहीं था कि बहसात के अंदर मासी को लेकर इतनी महरूमियां छुपी हुई हैं, बल्कि वो उसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रही है। अब मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। मुझसे शादी सिर्फ पापा से बदला लेने के लिए की गई थी। अगले दिन मैं ड्राइंग रूम में बैठी चाय पी रही थी। असर का वक्त था कि चौकीदार आया और बोला, बीबी जी, एक औरत आई है, जबरदस्ती अंदर आना चाहती है। ताई मेरे पीछे ही खड़ी थी तो बोली, कौन है? चौकीदार ने कहा, गरीब औरत है, कह रही है बड़ी बेगम साहिबा से मिलना है। ताई ने सोफे पर बैठते हुए कहा, अच्छा, अंदर आने दो उसे। चौकीदार अच्छा जी कहकर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद एक जवान औरत अंदर आई और आते ही नीचे बैठ गई। ताई ने कहा, कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आई हो? वो बोली, बेगम साहिबा, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे काम की सख्त जरूरत है। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, शौहर मेरा नशई है, न जाने नशा करके कहाँ पड़ा रहता है। मेरे बच्चे आपको दुआएं देंगे। मेरी सास ने कहा, बहुत सारे बच्चों से मुराद? ये सुनते ही वो जोर से बोली, नमक पारे और शमीम आरा,
जो ही उसने ये नाम पुकारे, एक एक करके पूरे 9 बच्चे उसके साथ ही नीचे आकर बैठ गए। मैं और ताई आंखें फाड़े उसके बच्चों को देख रहे थे। वो बोली, ये मेरा बेटा है, मैं प्यार से इसे नमक पारा कहती हूँ। और ये, उसने बाकायदा ढूंढते हुए कहा, कहाँ गई? हाँ, ये है मेरी बेटी शमीम आरा। पूरे 5 बेटे और 4 बेटियां हैं। अगर नमक पारे और शमीम आरा दोनों को बुलाती हूँ तो इसका मतलब होता है कि सबने मेरे आवाज पर हाजिरी देनी है। ताई ने परेशान होकर कहा, क्या ये सब यहाँ रहेंगे? अरे नहीं बीबी जी, इन्हें तो मैं सिर्फ इसलिए साथ लाई हूँ ताकि आपको यकीन दिला सकूं कि मुझे काम की किस कदर जरूरत है। ये तो घर पर ही रहेंगे। एक कमरे का हमारा मकान है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और घर पर इनकी दादी भी है इनको संभालने के लिए। ताई ने कहा, अच्छा इनको बाहर भेजो, फिर बात करते हैं। उसने उनको बाहर भेज दिया तो ताई ने कहा, तुम बिल्कुल अजनबी औरत हो, मैं कैसे तुम पर यकीन करूं? उसने फौरन अपने हाथ में पकड़ा शनाख्ती कार्ड ताई को पकड़ा दिया और बोली, बेगम साहिबा, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, चाहे तो अपने पास रख लें, अगर चाहे तो थाने में जमा करा दें। मैंने कहाँ जाना है? ताई ने चंद लम्हे सोचा और बोली, किचन संभाल लोगी? उसने खुशी से कहा, जी जी बिल्कुल, जो कहेंगी वो कर लूंगी। मैंने कहा, ताई अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? हम इसे नहीं रख सकते। अजनबी औरत बोली, छोटी बीबी, मेरा नाम करिश्मा है और करिश्मा किसी को धोखा नहीं देती। ताई ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाओ। वो बोली, मैं तो यही रहूंगी अगर आप चाहें। मैंने कहा, तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारे 9 बच्चे कौन संभालेगा? वो बोली, उनकी दादी उन्हें संभाल लेगी। मैं दिन रात मेहनत करना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए। ताई ने कहा, ठीक है, कल सुबह आ जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि बच्चे यहाँ ना आए। वो खुश हो गई और बोली, बच्चों की तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये सुनकर मैं उठकर कमरे में चली आई। मुझे तो ये करिश्मा बिल्कुल थक करिश्मा लग रही थी। अगले दिन सुबह सवेरे मैंने अपने लिए नाश्ता तैयार किया। इतने में कमल किचन में आई और मुस्कुराते हुए बोली, जुबिया, हमारे लिए भी नाश्ता बनाया है? मैंने कहा, मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ? वो बोली, क्या नाश्ता सिर्फ नौकर ही बनाते हैं? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे लिए नाश्ता सिर्फ नौकर ही बनाएंगे, या अपने लिए तुम खुद बनाओगी? ये कहकर मैंने अपना नाश्ता उठाया और किचन से बाहर चली आई। मुझे उस जिनसादे ने नॉर्मल रहने के लिए कहा था और कहा था कि सब कुछ वो खुद संभाल लेगा, लेकिन वो खुद है कहाँ, न जाने कब आएगा। इतने में करिश्मा भी वारिद हो गई। उसने मुझे सलाम किया और बोली, छोटी बीबी, मेरा इंतजार कर लेती, मैं खुद आपके लिए नाश्ता बना देती। मैंने कोई जवाब न दिया। वो मुस्कुराती हुई किचन में चली गई और कमल से कहने लगी, सबसे छोटी बीबी, आप बैठे, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। कमल बोली, ओह सो स्वीट, तुम कितनी अच्छी हो। बस इसी की कमी थी, घर नहीं ये चिड़ियाघर बन गया है। मैं मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। कमल ने कहा, जुबिया, तुम कुछ कह रही हो क्या? मैंने कहा, नहीं। मैंने चाय का कप उठाया और अपने कमरे में आ गई। क्या मुझे इस जिनसादे का इंतजार करना चाहिए था या खुद ही कुछ करना चाहिए था? इतने में बहसात और ताई भी रास्ते की टेबल पर आ गए। मैं उठी और किचन में चली आई। करिश्मा ने कहा, छोटी बीबी, क्या चाहिए आपको? मैंने चिल्ला कर कहा, जहर चाहिए, ये मेरा घर है, अब क्या मुझे यहाँ आने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा? ताई ने मुझे पुकारा और बोली, जुबिया, गुस्सा थूक दो। इतने में करिश्मा उस जिनसादे में तब्दील हो गई। ओह, मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। जिनसादे ने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए मुझे खामोश रहने के लिए कहा। जिनसादा दोबारा से करिश्मा में तब्दील हो गया, यानी जिनसादा करिश्मा के रूप में घर आ चुका था। इतने में करिश्मा यानी जिनसादे ने चाय कप में डाला ही था कि कमल चहकती हुई किचन में दाखिल हुई और बोली, करिश्मा साहब की चाय मुझे दो, मैं खुद लेकर जाऊंगी। वो चाय लेकर चलती बनी। करिश्मा ने मेरे कान में सरगोशी की, अब देखना। जैसे ही कमल चाय लेकर बहसात के पास पहुंची, चाय का कप ट्रे से फिसलकर बहसात के ऊपर जा गिरा। ओह, ये क्या कर दिया बेवकूफ लड़की! ये कहता हुआ बहसात कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। कमल बुरी तरह घबरा गई और बोली, ओह वेरी सॉरी बहसात, मैंने जानबूझकर नहीं किया, पता नहीं कैसे ये गिर गई। बहसात चिल्लाया, क्या पता नहीं?
मैं पहले ही कंपनी से लेट हो रहा हूँ। बहसात ये कहता हुआ कमरे में चला गया और कमल उसके पीछे पीछे कमरे में चली गई। मैंने मुस्कुराकर करिश्मा की तरफ देखा और डाइनिंग रूम में ही बैठकर टीवी देखने लगी। आज रात के खाने पर कमल की खाला मौजूद थी। पता चला था कि कमल के माँ बाप नहीं है, उसकी खाला ने उसकी परवरिश की है। कमल अपनी खाला के लिए जोर शोर से खाने पीने का एहतमाम करने में मसरूफ थी। आखिर शाम के ठीक 8 बजे कमल की खाला भी तशरीफ ले आई। टेबल पर खाना लगाया गया। कमल की खाला ने ताई से कहा, भाभी, सूबिया घर की बड़ी बहू है, उसे भी हमारे साथ खाना खाना चाहिए, उसे भी बुलाए ना। मैं अपने कमरे में बैठी उनकी बातें सुन रही थी। मैं उनके रवैये पर हैरान थी कि कमल और उसकी खाला के लिए मेरा वजूद किस कदर इत्मीनान बख्श था। उनके ऐसे मीठे लहजे मेरे लिए निहायत पुरस्रार थे। ऐसा कैसे हो सकता था कि उन्हें मेरी साथ से कोई टेंशन नहीं थी। मेरा दिल इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार न था। मैं कमरे से बाहर आई और बोली, बड़ी बहू का आपको इस कदर ख्याल था कि उस पर आप अपनी भांजी को सौतन बनाकर ले आई। कमल की खाला इंतहाई डिटाई से मुस्कुरा कर बोली, सूबिया बेटा, जिद मोहब्बत में होती है, जहाँ मोहब्बत ना हो वहाँ जिद नहीं करते। बहसात तो तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता है, सामने बैठा है, पूछ लो। मैंने बहसात पर एक नजर डाली और बोली, लेकिन मुझे अब भी अपने शौहर से मोहब्बत है। ये कहकर मैं अपने कमरे में वापस चली आई। खाने के बाद ताई और बहसात ड्राइंग रूम में ही बैठकर टीवी देखने लगे। कमल बोली, अम्मी, मैं खाला को घर दिखा दूं। ताई ने कहा, हाँ बेटा, जरूर दिखा दो। कमल अपनी खाला को लेकर छत वाले कमरे में चली गई। इतने में करिश्मा यानी जिनसादा मेरे कमरे में आया। उसने अपने एक हाथ की हथेली मेरे सामने की। मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गईं। जिनसादे की हथेली पर छत वाले कमरे का अंदरूनी मंजर दिखाई दे रहा था। कमल और उसकी खाला छत वाले कमरे में पहुंचे। कमल ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और बोली, खाला, आगे क्या करना है? खाला बोली, ये मकान जल्द से जल्द अपने नाम कराओ ताकि मैं इसे बेच सकूं। डीलर से मैंने बात कर ली है। सुना है सूबिया माँ बाप के घर से अच्छा खासा सोना लेकर आई है। उस सोने का भी पता करो कि उसने वो कहाँ छुपा रखा हुआ है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सूबिया अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। बहजाद से कहो सूबिया के नाम पर जो प्लॉट है वो उसे लेकर तुम्हारे नाम करे। सूबिया अभी तक उसकी मोहब्बत में पागल बनी हुई है। बड़ी आसानी से ये काम भी हो जाएगा। कमल बोली, लेकिन खाला, जूबिया प्लॉट मेरे नाम क्यों करेगी? खाला ने कहा, पागल लड़की, वो तेरी नहीं बहसात के नाम करेगी। तूने बहसात से अपने नाम कराना है। कमल बोली, अगर बहसात ने इनकार किया तो? खाला ने कहा, तो तुझे क्या मैंने यहाँ सिर्फ एंजॉय करने के लिए भेजा है? ये काम चंद दिन में पूरा होना चाहिए, समझ गए? अगर कुछ भी ना हो सके तो जायदाद के कागजात तैयार रखना, मैं आकर ले जाऊंगी। जाली कागजात मैं खुद बनवा लूंगी। इतने में ताई कमरे में आई। करिश्मा ने जल्दी से अपना हाथ मेरे सामने से हटा लिया। ताई ने कहा, करिश्मा, तू यहाँ क्या कर रही है? करिश्मा बोली, छोटी बीबी के सर में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा सर दबा दूं। ताई ने कहा, पहले किचन का काम खत्म करो, अच्छा नहीं लग रहा है, फिर जो दिल आए करना। ठीक है बड़ी बीबी जी। ये कहकर करिश्मा कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद ताई बोली, नसीम भाई का फोन आया था। मैं हैरान हूं कि तुमने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैं खामोश रही तो चंद लम्हे खड़े रहने के बाद ताई चली गई। न जाने ताई और बहसात क्या क्या करने का सोच रहे थे, लेकिन जो कुछ उनके साथ होने वाला था वो खुद उससे लाइल्म थे। मैंने कमल की हर एक हरकत पर नजर रखना शुरू कर दी। कमल किचन में चाय बना रही थी कि अचानक मैं किचन में दाखिल हो गई। मुझे अचानक देखकर कमल गड़बड़ा गई और बोली, ओह सूबिया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने कहा, क्यों, मैं भूत तो नहीं हूँ। फिर मैंने कहा, करिश्मा को कह देती, वो तुम्हारे लिए चाय बना देती। वो बोली, नहीं, दरअसल अम्मी के लिए बनानी थी तो मैं अपने हाथों से बनाना चाह रही थी। मैंने कहा, ओह, ये तो अच्छी बात है। वो चाय लेकर ताई के कमरे में चली गई। उसी वक्त बहसात भी घर वापस आ गए। कमल ने कहा, आज आपने देर कर दी। बहसात ने कहा, बस आज काम बहुत था। कमल बोली, मैंने आपके साथ जरूरी बात करनी है, मेरे साथ कमरे में आए। और बहसात कमल के साथ कमरे में चला गया।
मैं ताई के कमरे में गई। ताई सो रही थी। मुझे बहुत हैरत हुई कि ताई इतनी जल्दी सो भी गई। मैंने ताई को हिलाया, मगर ताई तो गहरी नींद सो रही थी। कप साइड टेबल पर पड़ा हुआ था। कहीं इसमें उसने नींद की दवाई तो नहीं मिलाई थी? आखिर ये करना क्या चाह रही थी? 2 दिन से कमल और बरसात के दरमियान कुछ खामोशी थी। कमल रोज रात को चाय में नींद की गोली मिलाकर ताई को सुला देती और फिर काफी देर तक बरसात के कमरे से कमल और बरसात के बहस करने की आवाजें आती। शायद वो बरसात को अपने पॉइंट पर लाना चाह रही थी और बरसात उसकी बातों में नहीं आ रहा था। आखिर चंद दिन बाद आधी रात का वक्त था कि कमल ने कहा, खाला आ रही हैं, उनकी तबीयत खराब है, तो मैंने उन्हें यहाँ ही बुला लिया है। ताई ने आज चाय भी नहीं पी थी, यकीनन इसीलिए जाग रही थी। रात का 1 बजा था कि एक गाड़ी अंदर आई। न सिर्फ खाला बल्कि उनके साथ 3 मर्द भी थे। हम सब हैरान उन्हें देख रहे थे। कमल ने कहा, ये खाला के रिश्तेदार हैं। खाला की तबीयत खराब है तो उन्हें छोड़ने आए हैं। करिश्मा भी मेरे साथ खड़ी थी। बहसात ने कहा, तो तुम मुझे बता देती, मैं खुद जाकर खाला को ले आता। इतने में खाला तीनों आदमियों के साथ अंदर आ गई। खाला और वो तीनों आदमी अंदर आते ही सोफे पर बैठ गए। खाला ने कहा, देखो बहसात, मेरे पास इतना वक्त नहीं है जितना मैंने तुम्हें दे दिया है। बहसात ने कहा, कैसा वक्त खाला? खाला ने कहा, ओहो, सदके जाऊं मैं तुम्हारी सादगी के। कई दिन हो गए। कमल तुम्हें समझा रही है कि घर उसके नाम कर दो, लेकिन तुम बिल्कुल ताबुन नहीं कर रहे हो। ऊपर से सारे कागजात भी तुमने अंडरग्राउंड कर दिए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ताई ने कहा, शाइस्ता, ये क्या बदतमीजी और बदतहसीबी है? खुलकर बात करो, कहना क्या चाहती हो? खाला ने कहा, शहनाज बेगम, तुम्हारे मुंह से तहजीब का लफ्ज अच्छा नहीं लगता है। तुम तो खुद बहू की जायदाद हड़पने के चक्कर में हो। थोड़ा सा मैंने ले लिया तो जायदाद कम नहीं हो जाएगी। फिक्र न करो, तुम्हारी बहू के पास बहुत माल है। इतने में बहसात ने शीशे की खिड़की से बाहर देखा तो एक आदमी बोला, बेफिक्र रहो, तुम्हारा चौकीदार हमारा मेहमान है। हमारे एक बंदे ने अपने पास उसे बिठा रखा है। किसी भी किस्म की चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इतने में करिश्मा ने कुछ पढ़कर उनकी तरफ भूखा। करिश्मा के ऐसा करने की देर थी कि उनमें से एक बोला, भाई सेवर मैं लूंगा। दूसरा बोला, भाई प्लॉट में लूंगा। तीसरा बोला, और ये घर मैं लूंगा। ये सुनकर खाला ने कहा, अरे अरे, क्या बात है? सब कुछ तुम लोग बांट लोगे तो क्या मैं यहाँ बैठकर झुंझुना बजाऊंगी? कमल बोली, ओए, जितना तुम लोगों के साथ तय हुआ है उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलेगा। ये सुनकर उनमें से एक आदमी खड़ा हो गया और बोला, मैं इतने पैसों के लिए यहाँ अपना वक्त जाया नहीं करता, मैं जा रहा हूँ। खाला ये देखकर उठ खड़ी हुई और बोली, ये सब क्या कर रहे हो? तुम लोग शहर के बदमाश हो या गली के आवारा बच्चे जिनके माँ बाप खो चुके हैं? इतने में करिश्मा यानी जिनसादी ने अपने करीब खड़े एक आदमी के सर पर थप्पड़ मारा। उसने करिश्मा की तरफ देखा, लेकिन बजाय कि वो करिश्मा को कुछ कहता, उसने साथ खड़े अपने ही साथी को एक थप्पड़ रसीद किया। ये देखते ही मैं कहकहा लगाकर हंस पड़ी। वो दोनों आपस में उलझ पड़े। खाला चिल्लाई, ओए, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? इतने में जिनसादे ने खाला के साथ खड़े उस शख्स को देखा। लग रहा था कि वो उन सबको लीड कर रहा था। वो शख्स अपना पेट पकड़कर जमीन पर बैठ गया और कहने लगा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उसके बाद अचानक वो रोने लग गया, फिर अचानक हंसने लग गया। ये देखकर कमल खाला के पास आई और कहने लगी, खाला, आप ये किन पागलों को अपने साथ ले आई हैं? खाला ने कहा, मुझे तो खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने में बहसात टेबल से अपना मोबाइल उठाने लगा तो खाला चिल्लाई, खबरदार बहसात, ये गलती ना करना, बहुत महंगी पड़ेगी। जिनसादा जो करिश्मा के भेस में मेरे साथ ही खड़ा था, उसने घूरकर उन 2 आदमियों की तरफ देखा जो आपस में एक दूसरे के साथ उलझे हुए थे। फौरन वो खाला की तरफ बढ़े। उन्होंने खाला को दाएं बाएं से पकड़ लिया और बोला, तुम करो पुलिस को फोन, हमने इसे पकड़ रखा है। ये सुनते ही कमल के औसान फतह हो गए। पेट को पकड़कर नीचे बैठा शख्स चिल्लाया, तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? ये तुम क्या कर रहे हो? खाला ने कहा, छोड़ो मुझे, लेकिन वो किसी तौर खाला को छोड़ने पर राजी न थे। इतने में कमल बहसात के फोन की तरफ लपकी।
बहसात ने कमल का हाथ पकड़कर उसे पीछे धकेल दिया। कमल उठी और बोली, खाला मैं जा रही हूँ, आप इन पागलों के साथ जेल जाएं। खाला ने कहा, अरे कमबख्त, मुझे क्या अकेला छोड़ जाएगी? जो ही कमल दरवाजे की तरफ बढ़ी, ड्राइंग रूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमल दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा भी खुलने के लिए तैयार न था। कमल ने कहा, खाला ये क्या हो रहा है? इतने में बहसात ने पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी देर तक तो पुलिस भी आ गई। पुलिस उन सब को पकड़कर थाने ले गई। कमल और उसकी खाला और उनके ये साथी एक गैंग की शक्ल में काम कर रहे थे। मेरे शौहर और ताई जैसे बेवकूफ लोगों को चिकनी चुपड़ी बातों में घेरते, बड़े तरीके से उनके घर तक रसाई हासिल कर लेते और फिर सब कुछ लेकर रफू चक्कर हो जाते। बहसात और ताई के साथ भी यही कुछ होने वाला था, लेकिन रहमदिल जिनसादे की वजह से हम लुटने से बच गए थे। पुलिस उनको पकड़कर थाने ले गई। बहसात ने शर्मिंदा नजरों से मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा, धोखे के सामने हमेशा धोखा ही आ खड़ा होता है। ताई भी खामोशी से अपने कमरे में चली गई। अगले दिन मैंने नाश्ता टेबल पर लगाया। ताई कमरे से आई और बोली, जुबिया तुम अपना सामान इकट्ठा करो और अपने घर चली जाओ, मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कहा, ताई आपको अभी तक नसीहत नहीं मिली कि रात हम लुटने से बच गए हैं। ताई ने कहा, मैं किसी किस्म की बहस नहीं चाहती। पूरा दिन एक गहरी खामोशी के साथ गुजर गया। असर का वक्त था। फोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, ये बहजाद साहब का घर है क्या? मैंने कहा, जी मैं उनकी मिसेस बात कर रही हूँ। फोन की दूसरी तरफ से खातून बोली, मैं सिटी हॉस्पिटल से नर्स बात कर रही हूँ। आपके शौहर बहजाद साहब को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है, आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाएं। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। मैंने ताई अम्मी को आवाजें दी, ताई अम्मी जल्दी बाहर आए। ताई अम्मी फौरन अपने कमरे से बाहर निकल आई और बोली, खुदा खैर करे, क्यों चिल्ला रही हो? मैंने कहा, बहसात का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी हॉस्पिटल चलें। ताई ने कहा, हाय अल्लाह, खुदा खैर करे। हम जल्दी से गाड़ी में बैठे और अस्पताल पहुंच गए। बहसात इमरजेंसी में सीरियस हालत में थे। इतने में इमरजेंसी से एक डॉक्टर बाहर आया। मैंने उससे बहसात की हालत के बारे में पूछा। वो मुझे पर्ची पकड़ाते हुए बोला, जल्दी से ये दवाएं ले आएं और बस दुआ करें। ये कहकर डॉक्टर वापस इमरजेंसी में चला गया। ताई जान ने पर्ची मेरे हाथ से खींची और बोली, मुझे दो, मैं खुद लेकर आऊंगी। और वो बाहर की तरफ भाग पड़ी। मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैं भी तेज तेज कदम उठाती ताई के पीछे चल पड़ी। हम अस्पताल से बाहर मेडिकल स्टोर पर आए। हमने दवाइयां ली और दोबारा अस्पताल जाने लगे। चंद ही कदम चले थे कि एक फकीर हमारे सामने आकर रुका। मैंने गौर से देखा, ये तो वही जिनजादा था। कहने लगा, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ताई अम्मी जो मुसलसल रो रही थी, उसकी ये बात सुनकर खामोश हो गई। ताई ने अपने आंसू पूछे और बोली, बाबा जी मेरा बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप दुआ करें कि वो ठीक हो जाए। फकीर यानी जिनसादा दोबारा बोला, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग ले, सब ठीक हो जाएगा। ताई ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर मुझे देखा और अचानक ताई ने वही अपने दोनों हाथ मेरे आगे जोड़ दिए और बोली, जुबिया मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा दिल दुखाया है। मैंने माजी में होने वाली अपने साथ नाइंसाफियों का बदला तुझसे लेना चाहा। दिन रात इंतकाम की आग में जल जल कर मैंने अपनी जिंदगी तबाह की और तेरी जिंदगी भी तबाह करने की कोशिश की। और फिर अचानक ताई को क्या हुआ? ताई ने ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया, लोगों सुनो, मैं बहुत जालिम हूँ, मैंने अपनी भतीजी के साथ बहुत नाइंसाफी की है, जुबिया मुझे माफ कर दे। मैंने ताई के जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए। मुझे तो डर लग रहा था कि ताई सदमे से अपने हवास न खो बैठे। ताई की जिंदगी में बहसात के अलावा कुछ भी नहीं था। यकीनन ताई अम्मी ने मुश्किल जिंदगी गुजारी थी। इतने में ताई ये कहते हुए जिनसादे की तरफ मुड़ी, मैंने दिल से माफी मांग ली है, अब क्या मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? लेकिन जिनसादा वहां नहीं था। ताई ने कहा, ये कहाँ चला गया? तुमने देखा जुबिया कि कहाँ चला गया? हमारे इर्द गिर्द लोग भी जमा हो गए थे। मैंने कहा, अम्मी अंदर चलें, हमने दवाई डॉक्टर तक पहुंचानी है। मैं और ताई अम्मी अस्पताल की तरफ चल पड़े।
एमरजेंसी पहुंचने तक रास्ते में कई बार ताई ने मुझसे एक ही सवाल किया, ज़ूबिया तूने मुझे माफ कर दिया ना? और मैंने एक ही जवाब दिया, जी ताई अम्मी, मैंने आपको माफ कर दिया। हमने दवाई डॉक्टर तक पहुंचाई। आखिर थोड़ी देर के बाद डॉक्टर एमरजेंसी से बाहर आया और बोला, परेशान ना हो, आपका बेटा खतरे से बाहर है। ये सुनते ही मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और ताई खुशी से मुझसे लिपट गई। तकरीबन एक हफ्ते बाद डॉक्टर ने बहसात को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। हम घर पहुंचे, चंद दिन मस्जिद गुजर गए। ताई सूप लेकर बहसात के पास आई। मैंने कहा, बहसात अगर तुम अब भी ये चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं तो मुझे बता दो। मैंने फैसला कर लिया है, मैं खामोशी से यहाँ से चली जाऊंगी और जैसे ही पापा वापस आएंगे दादा की जायदाद में जो भी तुम्हारा हिस्सा बनता है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। ये मेरा तुमसे वादा है। ताई ने कहा, ज़ूबिया हम ये बात खत्म कर चुके हैं ना, तो फिर तुम ये बात क्यों कर रही हो? मैंने कहा, ताई अम्मी ये बात हम खत्म कर चुके हैं, लेकिन बहसात के दिल में क्या है ये मैं नहीं जानती। मेरा ख्याल है हमें सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। बहसात बोला, मैं भी यही कहने वाला था कि हमें सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन अगर तुम मुझे माफ कर दो तो। अल्लाह ने औरत भी अजीब चीज बनाई है, वो अपने शौहर की एक मोहब्बत भरी नजर के लिए सब कुछ भुला देती है और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने बहसात को दोबारा पाने की खुशी में सब कुछ भुला दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।